Shall we pray for a minute? Then we listen to God. थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से, your presence makes everything beautiful. प्रभु आपकी उपस्थिति सब कुछ सुंदर बनाती है। We ask you, Holy Spirit, come, be with us. पवित्र आत्मा मांगते प्रभु हमारे बीच में आए। Help me to teach and preach. प्रभु मदद करे सिखाने के लिए, प्रचार May your करने के लिए। people joyfully receive these words. और आपके लोग प्रभु आनंद से इस I वचन को pray no स्वीकार करें। mind resist your word. और प्रभु आपका वचन प्रभु कोई रोके नहीं। Every resistance of the devil, I cast you out from this hall in Jesus' name. और हर एक नकारपन की आत्मा को प्रभु हम डांटते यीशु मसीह के नाम You have से। no foothold in the assemblies of God's saints. और प्रभु के संत के बीच में आपका कोई भी काम नहीं है। We are God's children. We are to build the kingdom of God. हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु का राज बांधने के लिए The आए हैं। enemy, you have no right in this ministry in Jesus' name. और शैतान आपको कोई अधिकार नहीं इस सेवकाई में। Father, I ask you to baptize your people. पिता अपने लोगों को प्रभु बपतिस्मा Take दीजिए। away their weariness and tiredness. प्रभु उनकी थकावट को आप निकाले। May the power of God return to every one of them. प्रभु की सामर्थ हर एक के ऊपर उंडेल Your दे। people tend to be powerful witnesses in this land. और प्रभु इस भूमि पर आपके लोग सामर्थशाली गवाह बने। Give us the grace to understand your word. प्रभु हमें अनुग्रह देना आपके वचन को समझने के In लिए, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमेन। Amen. So coming 3 Sundays, from today on 3 Sundays, I will be preaching on a topic about the Holy Spirit. और 3 हफ्तों से मैं एक संदेश पर मैं प्रचार कर रहा हूं और वो था पवित्र आत्मा के बारे में। Education is very, very, very important. और जो हमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। Last week, I was in one of the house group. और गए हफ्ते मैं एक गृह सभा में I था don't remember which child asked, spell it apple. और मैंने उसे पूछा कि एप्पल के बारे में आप बोलो। Who was that? Huh? Huh? Christine. Christine, yes. Okay. क्रिस्टीन। She said, perfectly spell it properly. और उसने सही तरह से उसके अक्षर बताए। You know, in order to make it clear into your mind the spelling, so many people worked hard. और ये अक्षर सही बनाने के लिए बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम किया I don't है। know how many pastings she got it for it. और कितना उसको मार पड़ी हमको पता नहीं How है। many books she destroyed. और कितने पुस्तक उसने खत्म किए पता How नहीं। many pencils she used. और कितने पेंसिल उसने इस्तेमाल But किए। today she can fluently spell it. आज वो सही तरह से अक्षर बता सकती है। And that will remain with the whole her life. और ये उसके जीवन भर रहेगा। Now she proud about her understanding. और उसकी समझ के बारे में उसको गर्व है। Same way with this book. उसी प्रकार से ये पवित्र शास्त्र है। This book is more important than. ये पवित्र शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। This book will take care of your spirit, mind and your pocket. और ये पुस्तक जो है आपकी आत्मा और आपका मन और आपकी जेब If you're only निकालेगा। running for your pocket, I don't consider you're a spiritual person. अगर आप अपने जेब के लिए अगर आप भाग रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आप महत्वपूर्ण हैं। That is a simple example we living as a worldly. और ये उदाहरण है कि हम एक सांसारिक लोग जी रहे When you हैं। become a spiritual person, जब हम आत्मिक व्यक्ति बनते हैं you're always sensitive to your own spirit inside. और जो आपके अंदर जो आपका अंतर्मन है उसके प्रति आप प्रतिबद्ध है। Always your mind speaks to you about Jesus Christ. हमेशा आपका मन यीशु के बारे में And बोलता your है body will follow this. और आपका शरीर उसके पीछे चलता So है। education is very, very important for us to live a dignified life for Jesus. इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आदर वाला जीवन जिए यीशु के लिए। Today I'm going to talk about the work of the Holy Spirit. आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोलने वाला Next हूँ। Sunday we'll speak about the fruit of the Holy Spirit. अगले हफ्ते हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में And बोलेंगे the third Sunday we talk about the gifts of the Holy Spirit. और उसके अगले हफ्ते हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे All में these topics are for you and for your children. और ये सभी संदेश जो है आपके और आपके बच्चों के लिए है। Don't be attracted by this world. और इस संसार से आकर्षित मत होना You should be attracted by Jesus Christ. और आपको यीशु मसीह के द्वारा आकर्षित होना As the चाहिए। Bible, when your life you exalt the name of Jesus, Jesus will attract your family and relate you unto himself. जब यीशु मसीह के नाम को ऊपर आप ऊपर उठाओगे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार यीशु मसीह की ओर खींच आएंगे You are the testimony to your own family. और अपने परिवार के लिए आप गवाही है।
your people around you only become like you. और आपके लोग जो आजू बाजू में वो आपके समान बनेंगे। If you grow in spirit, they also grow along. जब आत्मा में आप बढ़ेंगे आपके साथ वो भी बढ़ेंगे। If you are lukewarm, you make others also lukewarm. अगर आप ठंडा है तो आपके जैसे ही लोग ठंडे बनेंगे। Never expect anything more than what you have inside. और जो आपके अंदर है उससे ज्यादा अपेक्षा आप मत करें। Whatever you have inside, same thing will manifest everywhere. और जो आपके अंदर है वही आपको बाहर दिखाई If you देगा। throw apple seed, apple plant will grow. अगर सेब के अगर बीज आप बोएंगे तो सेब का ही फल आएगा। If you throw grape seed, grape wine will grow. अंगूर के बीज अगर आप बोएंगे तो अंगूर ही आपको मिलेंगे। Mango seed, mango plant will grow. अगर आम को बोएंगे तो आम का आम ही So मिलेंगे। never ever expect something happen in you more than what you have. और जो आपके अंदर है उससे ज्यादा आप अपेक्षा मत करो। What you have is a seed you have received from God. और जो आपके अंदर है वो बीज है जो प्रभु से आपने पाया है। That should be the word of God. और ये प्रभु का वचन है। We should be proud about this book. और इस वचन के ऊपर आपको गर्व करना We है। should be proud of reading and speaking about this book. और इस पुस्तक के बारे में वचन पढ़ने के बारे में अपने आपको जो गर्व करना है। Bible says Genesis chapter 1, 2, 3. और उत्पत्ति के पहले अध्याय में 1, 2 और 3 In में the beginning, God made everything. और प्रभु के आरंभ में प्रभु ने सब कुछ बनाया। One God come here. One God come. Who wants to be a God? Santosh, you come. I want to make you God. Come. I want to. Your name is called. Come. Otherwise, lift you the chair. Come. Ah. Come. In the beginning, और आदि में God made. परमेश्वर ने बनाया। Genesis chapter 1. और उत्पत्ति पहला अध्याय। Second word says, now the world, the earth is formless and void. और वहां पर कहती है पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। Now this creation to the second creation, how many thousand years nobody knows. Sir, stand on that side. Yeah. और ये सृष्टि और इस सृष्टि से कितना अंतर है, कितनों सालों का अंतर है, किसी को पता नहीं है। Verse 1 to 2. और वचन 1 से 2 के बीच में जो अंतर है वो कितने सालों का किसको पता Somebody नहीं है। read verse 1, Genesis 1. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सृष्टि की। Beginning God made heavens and earth. Yes. This is the God made. God smiled God. Heavens and the earth. और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। Now read the second verse. और दूसरा वचन कहता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी ये पढ़ो पढ़ो। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के परमेश्वर ऊपर। का आत्मा हो। परमेश्वर आत्मा कोई है? परमेश्वर का आत्मा। अशोक गुड। परमेश्वर आत्मा आजा आजा। परमेश्वर आत्मा आ रहे देखो। This is God's spirit. और ये परमेश्वर का आत्मा है। First words only God revealed. Now God is revealing His spirit. और पहले परमेश्वर अपने एक आदमी को तय किया और अभी पवित्र आत्मा को उसने बनाया और ये दूसरा वचन है। God is revealing Himself through the spirit. और परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। Now read verse 3. और तीसरा वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा वो वे कहा जाओ, एक कहा जाओ, कहा प्रभु का वचन। कोई है? नहीं तो ना बुलाना पड़ेगा। Raghu. Okay, brother Raghu, come. Wonderful man. Come. These are all my old members. Still remain faithful. Come. This time many have all disappeared. Not going to heaven, wandering in the world. You remain. Praise God, brother. Come. Yeah. You say, turn this side. Satya, to go thoda aage jao. ये इधर आके खड़ा, ये लास्ट इधर आ जाओ। Yeah. Yes. Now, verse 1, 2, 3, God revealing as God, Holy Spirit and the Word of God. और परमेश्वर जो पहले प्रभु को प्रकट कर रहा है, बाद में वचन को, पवित्र आत्मा को, बाद में वचन को। Now read Genesis 1:26. और उत्पत्ति 1 और 26 वचन हम पढ़े।
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। These three people, both of three of you raise your hands like this. Both hand, boy. Now these three people in agreement going to make a man. Come here. और ये तीन लोग जो हैं एक बात पे सहमत होकर एक मनुष्य को बनाते हैं। Three people तीन लोग made a decision, निर्णय लिया create a man और मनुष्य को बनाया like them. उनकी समानता में। Then how he is looked should be? और ये कैसे दिखना चाहिए अभी? Like them. उनके समान। Who are they? कौन है वो? ए मेरे स्वर्गीय पिता, पवित्र हो तेरा नाम। This पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा creating this man according to their likeness. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने एक मनुष्य को बनाया उनके समान। So from here to the sole of his feet, they decide, they plural, they decide how Rage should be. और इन लोगों ने जो निर्णय किया कि सिर से पांव तक ये कैसा रहेगा। Later ये हड्डी निकाल के, अभी तुम्हारा हड्डी मैं नहीं निकलेगा नहीं टाइम में, हाँ करेक्ट नो, लेडी आया ना अभी उसको नहीं निकालने का, हाँ ओके सो अंडरस्टूड। हाँ देखो और एक बार देखो ये लोग का पिता स्माइल पिता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ऑलवेज स्माइलिंग। दिस इज द वर्ड। वचन, ये वचन है। वर्ड थोड़ा स्माइल करो। We give a big hand for them. Thank you. Now we going to the message. अभी हम संदेश की ओर जा रहे हैं। And also Deuteronomy 6:4 says we have only one God. और व्यवस्था विवरण में कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही We have परमेश्वर only, है। we believe one God. हम एक परमेश्वर विश्वास करते But हैं। God revealed himself to us three functional ways. और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तीन अलग तरीके से। One is God, एक प्रभु है, God's Spirit, पवित्र आत्मा God's Word. और प्रभु का वचन। You, आप, your Word, आपका वचन your presence. और आपकी उपस्थिति। Some of the chairs empty today. आज बहुत से थोड़े कुर्सियां खाली हैं। We feel not good about it. हमको अच्छा नहीं लगता है। Because that chair is reserved for certain people. और वो कुर्सी किसी लोगों के लिए रखी है। They found something more important than God today, so they didn't make it. आज उनके लिए प्रभु से ज्यादा बढ़कर और कोई So चीज है we इसलिए वो नहीं आए। cannot feel anything about them today in this house. और हमको कुछ लगता नहीं है इसके बारे में इस प्रभु के घर में। Are you listening? क्या सुन रहे हैं? God, God's word, God's presence. और प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति। If you put all three together, God. अगर तीन हमको एक को मिलाए तो परमेश्वर। Now God is revealing himself to us for our benefit. और परमेश्वर हमारे फायदे के लिए अपने आप को प्रकट कर रहा है। God is revealing to us the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्रकट कर रहा है। God is revealing to us His Word. परमेश्वर उसके वचन को प्रकट कर रहा है। The Word of God name, God the Father put Jesus. और प्रभु का वचन पिता ने उसका नाम रखा यीशु। But we believe in one God. हम एक परमेश्वर विश्वास That's करते the हैं। Bible said, Deuteronomy 6:4. इसलिए व्यवस्था विवरण 6 और 4 में कहता है, Hear, O believers, our God is one. और सुनो मेरे विश्वासियों, परमेश्वर एक है। Hear, O Victory Family Church, our God is one. विक्ट्री फैमिली चर्च के लोगों, सुनो हमारा परमेश्वर एक है। Love Him with all your heart, all your mind, all your strength. और पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे अपने शक्ति से प्रभु से प्रेम करो। This is the way you should love God. और इस प्रकार से आपको प्रभु से प्रेम It's करना a है। God's demand. ये परमेश्वर की चाहत है। The same thing mentioned in the Matthew 22nd chapter. और मैथ्यू के 22 अध्याय में लिखा So है, if you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं God demands your full love for Him. और परमेश्वर संपूर्ण प्रेम आपसे चाहता है, That means in your life nothing more important than God
should not be there. इसका मतलब है कि आपके जीवन में प्रभु से बढ़कर और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। Then only you qualify to understand the scripture. और तभी जो है आप उत्तम हो जाते हैं प्रभु को वचन का समझने के लिए। Don't ever think if you don't believe in God, God will fall. ऐसा मत सोचो कि अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो प्रभु गिर जाएगा। Don't ever think if you don't come to church, church will shut down. Never. ऐसा मत सोचो आप कलीसिया में नहीं आएंगे तो कलीसिया बंद कर We जाएगी। are called by God to do this job. हमें परमेश्वर ने बुलाया इस काम को करने के I'm लिए। very proud about to say this to you. और ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ We are आपको, called to do this work. हमें बुलाया इस काम करने के Therefore, लिए, God will bring people इसलिए continuously. लोग परमेश्वर लोगों को लेके आएगा। So unless you don't love God completely, जब तक आप प्रभु से संपूर्णता से प्रेम नहीं करते you will not understand the meaning of the scripture. और इस वचन का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। Scriptures is God breathed. और वचन प्रभु का श्वास है। Hello. Like in your house, where things are, you know exactly where it is. जैसे आपके घर में आपको पता है कौन सी चीज कहाँ है। Correct, no, Jyoti? You know where the money is there, gold is there, correct? You know, correct? Same when you born from God, God will give explanation of the scripture. और आप प्रभु के द्वारा जन्मे हैं और परमेश्वर जो आपको वचन के बारे में बताएगा। God give a creativity to understand and present the scripture to others. और परमेश्वर हमको नई सोच देगा कि वचन को प्रस्तुत करने के लिए। Today we are going to talk about the work of the Holy Spirit. आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में। If once you become a believer, जब आप विश्वासी बनते हैं, you hear God's word. आप प्रभु के वचन सुनते हैं। Before you become a believer, आप विश्वासी होने से पहले somebody preached you God's word. किसी ने प्रभु का वचन आपको बताया, You are hearing it. आप उसको सुन रहे हैं The Holy Spirit convicted you. और पवित्र आत्मा ने आपको एहसास दिया You said, I'm a sinner. और आपने कहा कि आप पापी हैं, I want salvation. मुझे उद्धार चाहिए। Is it correct? ये सही है। Because that the word of God came inside. और इसलिए कि प्रभु का वचन आपके अंदर आया, Holy Spirit go before, prepare a person, receive the word. और पवित्र आत्मा जाता है उस व्यक्ति को तैयार करता है प्रभु के वचन स्वीकार करने के लिए। Who is sending it? और कौन उसे भेजता है? Father who is in heaven. और पिता जो स्वर्ग में है। Father loves you. पिता आपसे प्रेम करता His है, eyes fell on you. उसकी दृष्टि आप पर गिरी He is sending somebody to you. और वो किसी को आपके पास भेजता है He or she coming speaking God's word. और स्त्री या पुरुष आपके सामने आकर वचन बोलते You हैं are listening to it और आप उसको सुन रहे हैं because you being prepared by God. क्योंकि आपको तैयार किया That's गया what है Jesus प्रभु ने। said. You didn't choose me. I have chosen you. इसलिए प्रभु कहता है कि आपने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने आपको चुन लिया है। Therefore, we need to learn to behave properly. इसलिए हमें सही बर्ताव करना सीखना You होगा। are playing with the dangerous stuff. और आप बहुत खतरनाक चीज से खेल रहे हैं। You are being chosen by God. Ultimately, last privilege, final privilege for your life. और परमेश्वर ने आपको चुना है और ये आपका सौभाग्य है और अंतिम सौभाग्य है। If you disrespect, nothing left for you. अगर आप इसके अनादर करते हैं तो कुछ भी आपके लिए बचा नहीं Written है। in the Hebrews 10th chapter. हिब्रू के 10 अध्याय में When you play with this salvation, nothing left for you. और उद्धार से जब आप खेलते हैं कुछ भी आपके लिए नहीं If बचेगा। you neglect, live like unbeliever, you kicking life into a garbage box. Remember this. और अविश्वासियों की तरह जीवन को ठुकराते हैं तो आप एक कूड़ेदान के समान जी रहे हैं। Your faith is very expensive. और आपका जो विश्वास है बहुत ही महंगा है That is bought by the blood of Jesus और Christ. इसको खरीदा गया है प्रभु के लहू के द्वारा। It is बहुत अमूल्य चीज है खुदा के लिए. और प्रभु के लिए बहुत ही ये मूल्यवान चीज We है। are not worthy. हम इसकी योग्य नहीं है, फिर भी यीशु दया दिखाया. फिर भी यीशु ने दया दिखाई। What do you think? There are no bigger than you people in city? क्या आपको लगता है कि आपसे अच्छे लोग बाहर बैठे नहीं हैं? More wealthy and more beautiful than और you? बहुत सुंदर और बहुत धनी There are आपसे plenty. There are plenty. बहुत लोग हैं। Therefore, be humble. दीन बनो, When you're नम्र humble, बनो। God will lift you up. जब आप नम्र बनोगे प्रभु उठाएगा आपको। God selected you. और प्रभु ने आपको चुन लिया है। God selected me. प्रभु ने मुझे चुन लिया है। How do I know that? कैसे मैं जान I सकता? experienced Him in my life. क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अनुभव पाया है। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता है।
Holy Spirit came to you, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया convicted you on what you heard. और आप जो सुना उसका एहसास दिया। That's how you become born again. इस प्रकार से आप पुनर्जन्म हुआ आपका। You born, you dead, Jesus brought life back again to you. आप जन्मे, आप मरे और परमेश्वर ने फिर अपना जीवन आपके अंदर डाल Through दिया। Jesus, God brought you into His family. और यीशु के द्वारा परमेश्वर ने उसके परिवार You में are a आपको लेके member आया। of God's family. और आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। If your child grown up become a adult or young man, अगर आपके बच्चे बढ़कर जो नौजवान युवक बन जाते हैं, if he lives always on the street, what people call him? अगर वो हमेशा रास्ते पर रहेगा तो लोग उसे क्या कहेंगे? If he doesn't respect your own family, what do you feel about? अगर अपने परिवार का वो आदर नहीं करता है तो आपको क्या लगता है? This is more intensified than that. और ये बहुत ही मकसद वाला चीज है। Jesus brought you to the church by His own blood. और यीशु मसीह ने आपको कलीसिया में लेके आया अपने खुद के लहू के द्वारा। I will use him or use her to build my kingdom. और मैं आपका इस्तेमाल करूंगा प्रभु के राज्य बांधने के लिए। You have any idea of this? क्या कोई इसके आपको पता है इसके बारे में? That means we are not acting as family born child. और हम परिवार के सदस्य जन्मे हुए इस प्रकार से हम बर्ताव नहीं करते हैं। Family born child understand the family. और परिवार से जो जन्मा होता है वो परिवार के बारे में उसको पता होती है। That's why we all need to have the Holy Spirit dependency. इसलिए हमेशा हमें पवित्र आत्मा ऊपर निर्भर होना है। Today our text is John chapter 16, 5 to 15. और यूहन्ना का 16 अध्याय 5 से 15 हम वचन पढ़े। You keep your Bible open. अपने बाइबल को आप खुले रखें। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास, I will say it. Jesus is saying, यीशु कह रहा है, now I am going to him who sent me. परंतु मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। Who sent Jesus to the world? और किसने यीशु को भेजा संसार में? Peter. Now Jesus, listen carefully. Jesus saying, I am going back to my Father. और यीशु पवित्र कह रहा है कि मैं अपने पिता के पास जा रहा Why हूँ। am I going there? और मैं क्यों जा रहा हूँ? To send Holy Spirit to be with you. और पवित्र आत्मा को भेजने के लिए। So Jesus came to introduce the Father to you. और यीशु मसीह आया पवित्र आत्मा का पिता का परिचय And देने के लिए। also send the Holy Spirit into your life. और पवित्र आत्मा को आपके जीवन में भेजने के That लिए। simply means इसका मतलब ये है, Father, Son, the Holy Spirit, this three-in-one God has to work on your faith for you to have a fruitful faith. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है ये तीनों मिलकर आपके विश्वास में काम करते हैं ताकि आपको फलदायक Some जीवन of the मिले। place I was talking about, the Holy people no idea. और थोड़ी जगह पर पवित्र आत्मा के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो इसके बारे में उनको कुछ समझ नहीं They है। heard up to Jesus, finished there. उन लोगों ने यीशु तक सुना और वहां से वो If खत्म। you believe in Jesus Christ, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, Jesus placed you into the hands of the Holy Spirit for your spiritual welfare. और आपकी आपकी आत्मिक जीवन की भलाई के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के हाथों में रखा। If you don't allow in the Holy Spirit work on you, or you don't allow him to come inside, you are like a man or woman driving your vehicle on the off-road. और आप अगर पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते आपके जीवन में काम करने के लिए तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गाड़ी जो है खराब रास्ते पर चला रहे हैं। You never be settled. और आप कभी स्थिर नहीं रहेंगे। You never be happy. आप कभी खुश नहीं रहेंगे। Problem one after another. और समस्या एक से एक Family बाद। problem, that problem, this problem. और परिवार की समस्या, ये समस्या, वो समस्या। Then where is your authority Jesus given unto you? और जो अधिकार यीशु ने आपको दिया वो कहाँ Where है? is authority Jesus given unto you? और जो अधिकार यीशु ने आपको दिया है वो कहाँ है?
You got to drive over the problems. और आपको समस्या के ओर से चलना है, Problems should not drive you. और समस्या को आपको नहीं चलाना That चाहिए। means we may be a self-centric person. और इसका मतलब ये कि हम स्वार्थी लोग हैं We have whatsoever no revelation of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का कोई प्रकटीकरण नहीं है। Now Jesus is saying, यीशु कह रहा है, I will send a counselor to be with you. और मैं आपके पास एक सहायक कर्ता भेजूंगा। First work of the Holy Spirit to be a counselor. और पहले बात जो पवित्र आत्मा की, वो आपको एक सलाह देता If है। you see a dictionary meaning of counselor, अगर आप डिक्शनरी में उसका अर्थ देखेंगे, I was looking, it says like this. ऐसा कहता है, Someone who is trained to listen to people and give them advice about their problem. और ऐसा व्यक्ति जिसको सिखाया गया है कि उनको सलाह देने के लिए उनके समस्या के बारे में। Hello. Any big post in the government, और कोई बड़ा पद जो सरकार में, they will have a council secretaries और वहां पर उनके जो है व्यवस्थापक होते हैं or advisors. और उनके जो सलाहकार होते They हैं, will advise the minister to make the right decision. और उन मंत्रियों को वो सलाह देते हैं सही निर्णय लेने। God's key, if you work, you will be honored. और अगर आप करते हैं काम तो आपको आदर मिलेगा। So counselor means one who trained to listen to you and give you solution. और सलाहकार वो व्यक्ति होता है जिसको सिखाया गया है आपको सही सलाह देने में आपकी समस्या के Now लिए। suppose you are in problem. अगर समझो कि आप समस्या में Who do you हैं, listen to? आप किसके पास सुनेंगे? Listen to unbeliever, granny, grandpapa. अविश्वासी और उनके दादी दादा को सुनेंगे? They don't worship Jesus. वो यीशु से प्रेम नहीं करते हैं। Sometimes people come and ask me counseling. और थोड़े लोग आकर मुझसे सलाह मशवरा लेते हैं, Pastor, क्या करो? पास्टर मैं क्या करूं? I thought this fellow will listen to me. मैं सोचा कि वो मेरी बात सुनेगा। मैं चाय पिलाता, कॉफी, क्या भी चाय पिलाता है. मैं उसको चाय पिलाता हूँ और क्या भी पिलाता हूँ। Don't think Gande I will talk to them. और ऐसा मत सोचो कि मैं इससे बात करूंगा, 2-3 घंटे बात करूंगा। I told you got anointing. Okay. I'm wrong. I'm wrong, brother. You're correct. Though 2-3 hours I'm talking to them. वो मैं 2-3 घंटे उनसे बात कर रहा हूँ। They listen everything. Pastor, प्रार्थना करो. उन लोगों ने सही सुना और कहा पास्टर जी प्रार्थना करो। रो के मैं प्रार्थना भी किया. मैं रोते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे दरवाजे से बाहर निकला, वो जाके पहले का ऐसा भी काम किया. और मैं दरवाजे से बाहर निकलने के बाद जैसे पहले से उन लोगों ने वैसा ही काम अरे किया। तुमको कौन बोला मेरे टाइम बर्बाद करने का? करेक्ट है? Sitting and listening, and he or she does the same again. और सुनकर आप सुनते हैं, बैठकर सुनते हैं, लेकिन वही करते हैं जो आपको करना है। And waiting for good result to come. और मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि सही निकाल आएगा। तुम्हारे सिर में कांटा का प्लान बढ़ना चाहिए था, कांटा का. काटे. Correct? If you don't want to take advice, please don't ask. अगर आप सलाह लेते हैं, अगर करना नहीं चाहते तो मत पूछो। If you are happy to live a certain life, enjoy. इस प्रकार का जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो आनंद मनाओ। If you think I don't like this lifestyle, अगर आपको पसंद लगता है कि ये मुझे जीवन शैली पसंद नहीं living है, sin always problem, no peace at all. अगर सुनकर कोई शांति नहीं है, कोई आपके जीवन में शांति नहीं है, If you're miserable with your life, अगर आप अपने जीवन से दयनीय है, then you sit down before God. और आप प्रभु के सामने बैठे, Say, Jesus, send me the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा को भेजो, Help me to change. मदद करो बदलने के लिए। If you're enjoying your godless life, you enjoy. अगर प्रभु के बिना अगर जीवन का आनंद आप उठा रहे हैं तो God उठाओ। is not begging for you to come to God. No. परमेश्वर आपसे भीख नहीं मांग रहा है कि उसके पास आने के He लिए। is who is wear and tired, come to me. प्रभु कहता है जो थके हुए दबे हुए वो मेरे पास आओ। If you're a sinful person, you're tired of your sin, come to me. अगर आप पापी या पाप से थक गए तो मेरे पास आओ। You understand? I know I'm speaking to the believers. मैं
मानता हूं कि मैं विश्वासी से I'm बात very कर रहा हूं fully aware of what I'm speaking. और मैं बहुत जानकारी से बोल रहा हूं मैं क्या Some बोल of रहा you हूं need to think for yourself, make your decision whether you want Jesus or reject him. अगर आपको ये सही निर्णय लेना है कि आप यीशु चाहिए आपको या नहीं चाहिए You cannot be double standard living. और दोहरे मापदंड के साथ आप नहीं जी सकते मरता भी नहीं, जिंदा भी नहीं होता। मरता भी नहीं है जिंदा भी नहीं है अरे एक साइड में आ जाओ ना। हमारे विरोधी है तो हम लोग प्रे कर सके, प्रभु वो सुधरने दो। हमारे पास एक पाव दूसरा पाव साइड। मैं 25 years experience of preaching. 25 साल का अनुभव है मुझे People प्रचार करने listen to my message, praise the Lord and gossiping against me other side. और प्रभु का संदेश आप सुनते हैं प्रभु की स्तुति मुझे बोलते हो और चुगली करते हो दूसरे बाजू में I don't bother about that. Days are gone. और मुझे कोई परवाह नहीं इसके बारे में Now वो I दिन बीत don't चुके care who does what. और मुझे कोई परवाह नहीं है इसके बारे I में know कौन when क्या करता God is with me, I preach a lovely message. और मुझे पता है यीशु मेरे साथ है और मैं सुंदर सा प्रचार मैं करता हूँ I live by the mouth. मैं जीता हूँ मेरे मुंह से My job is to teach and preach God's word. और मेरा काम है प्रभु का वचन को संदेश को प्रचार करना I सिखाना don't need any man's help. I need the help of the Holy Spirit मुझे in my किसी life. मनुष्य की मदद नहीं चाहिए मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा की मदद चाहिए When will you speak like me? कभी आप मेरे जैसे बात करोगे I need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए I want to preach God's word. मैं प्रभु के वचन प्रचार करना The चाहता हूँ Holy Spirit job is to counsel you. और पवित्र आत्मा का काम है कि आपको सलाह मशवरा What he will करे counsel you? और क्या वो मशवरा देता है Tell you this area you are not correct. वो आपको कहता है कि इस क्षेत्र में आप सही बन जाओ Not me saying, Holy Spirit will teach you. पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा Jesus, I'm going to my Father. I will not send you orphan. I will send you the Holy Spirit. Be with you. Counsel you. और मैं पिता के पास जा रहा हूं लेकिन मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं पवित्र आत्मा आपको ले भेजूंगा जो आपको सलाह मशवरा करेगा Human counsel may fail. और जो मनुष्य की जो सलाह है वो हार सकती है The God's counseling never fails. लेकिन प्रभु की जो सलाह है वो कभी हारती नहीं है Amen बोल सकता है? आमीन बोल सकते हैं Amen. Amen. Say amen. जोर से आमीन Praise the very victory family. Victory should be there. Otherwise, क्या family है लोग? और विक्ट्री फैमिली चर्च यानी विजय आपके परिवार में होना चाहिए God and the पवित्र आत्मा मिलकर बैठा है उधर. हैं? So encourage each other. You are together, okay? Not divided. और आप एक है और विभाजित नहीं है एक दूसरे को प्रोत्साहन The कीजिए। Holy Spirit will counsel you. और पवित्र आत्मा आपको सलाह मशवरा करेगा That means you have to sit down every day morning. इसका मतलब ये कि हर एक सुबह प्रभु के सामने You बैठना है don't read your grocery list to God. और जो सामान आपको खरीदना है उसके बारे में प्रभु के सामने मत बोलना मुंह दिया खुदा जान दे क्या मुंह में डालेगा. प्रभु ने आपको मुंह दिया है प्रभु जानता है आपके मुंह में क्या डालना है हाँ अब उसका ग्रोसरी लिस्ट में डरा मत. मुर्गी लेके घर से जीसस से मैं खुदा तू खुदा है क्या तू मेरे को बोलता क्या करना का. कॉमन सेंस वेरी सिंपल मेनी पीपल डजंट हैव. और बहुत साधारण सी बात है बहुत लोग नहीं जानते हैं कॉमन सेंस सामान्य बुद्धि दूसरा मैसेज मत बनाओ. सामान्य बुद्धि करेक्ट नो वेरी सिंपल बट मेनी पीपल डोंट हैव. सामान्य बुद्धि बहुत ही साधारण सी बात है लेकिन बहुत लोग नहीं व्हाट्स जानते द कॉमन सेंस. क्या है वो सामान्य बुद्धि होली स्पिरिट हेल्प यू टू बी अ बेटर पर्सन. पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है बेहतर व्यक्ति बनने के लिए God's idea, not my idea. ये प्रभु की विचार है प्रभु की It सोच is है Jesus' idea for you. और यीशु मसीह का ये विचार है आपके लिए Not pastor's idea. Pastor's job is to read and shout. और पासवान की विचार नहीं है पासवान का काम है कि प्रभु का वचन पढ़ो और आपको बोलो Reading, get excited and speaking because I see this here. I'm speaking. और प्रभु के वचन पढ़ो और उत्साहित हो जाओ और अपने लोगों को बताओ What I see, I shout. दिखता है, दिखता है. जो मुझे दिखता है मैं आपको बोलता हूं As you listen, आपको भी दिखना पड़ेगा. हाँ मेरे को भी दिखता है.
then we all become preachers of God's word. तभी हम सब लोग प्रभु के वचन के प्रचारक बनते हैं। There is a future of Vasco da Gama. और यही वास्को द गामा का भविष्य है। आप उसको निकाल कर संभाजी नगर डालो, कौन सा भी नगर डालो, ये वास्को का मिनिस्टर लोग इधर बैठा है। आमेन। थोड़ा लोग मेरे को ऐसा देखते हैं, ज्योति आपको मैं अवरेक बोलता है, मैं क्या बोला सही है, आप बदला नहीं तो ये कीचड़ में आप भी गिर जाएगी। याद रखो मेरे बात। You got to separate yourself, save people from the कीचड़। और आपको अपने आप को अलग करना होगा और लोगों को कीचड़ से बचाना The होगा। Holy Spirit, I will counsel you. पवित्र आत्मा कहता है कि मैं आपको सलाह दूंगा Make you like Jesus. और मैं यीशु के समान आपको बनाऊंगा Teach you to love the Father. और who is आपको in heaven. सिखाऊंगा पिता से प्रेम करने के लिए। Amen. We all need a counselor. हमें सभी चाहिए, सलाहकार चाहिए। If you go to school, there is a counselor. अगर आप स्कूल पाठशाला में जाते हैं वहां पर सलाहकार If you रहते go हैं। to hospital, there is counselors. अगर अस्पताल में जाते हैं वहां सलाहकार रहते In the हैं government, there is counselors. और सरकार में जाते हैं वहां पर सलाहकार रहते हैं। But the believer, our counselor is the Holy Spirit. विश्वासी हमारा सलाहकार पवित्र आत्मा है He will convict you. और आपको एहसास देगा When you sit down to pray, जब आप बैठते प्रार्थना के लिए, you ready to change. आप तैयार है बदलने के लिए। When the Holy Spirit speak, जब पवित्र आत्मा बात करता है you got to accept that. उसको आपको स्वीकार करना होगा। Otherwise, we habituated in praying, but nothing changing at all. नहीं तो हम प्रार्थना करने में आदत डालते हैं लेकिन बदलते That नहीं हैं। message came next Sunday, fruitfulness. और ये संदेश जो फलदायक होना मैं अगले If बार को our बताऊंगा। prayer is not changing our lifestyle, we are praying to ourselves. अगर हमारी प्रार्थना जीवन का तरीका बदलती नहीं है तो प्रार्थना हम अपने आप के लिए नहीं करते हैं। If your prayer is changing, the Holy Spirit is at work within you. अगर पवित्र प्रार्थना के द्वारा जीवन बदलता है इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपके जीवन में We कार्य are करता not है। here to do favor to anybody. हम यहाँ पर किसी के ऊपर उपकार करने के लिए We नहीं आए have हैं। to do favor to ourselves. हम उपकार अपने आप के लिए करना By चाहिए sitting down, listening to God. और प्रभु के सामने बैठना, प्रभु की बात सुनना। That's the only way your lives get better and better. इस प्रकार से आपका जीवन बेहतर बन So सकता Holy है। Spirit is a trained, is God Himself. Listen to all your problems and give you solutions. पवित्र आत्मा को सिखाएगा कि आपकी समस्या सुने और आपको उसका समाधान भी दे। So you must spend time with Him every day. इसलिए हर दिन उसके साथ समय बिताना I होगा। know some believers never pray. मैं जानता हूँ थोड़े विश्वासी कभी प्रार्थना नहीं करते। Not in this church, other church. यहाँ कलीसिया के लोग नहीं, बाहर के कलीसिया When के लोग। you don't pray, you know what happened? अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो When क्या होता है? pastor speaks, you don't like it. अगर पासवान जब प्रचार करता है आपको पसंद नहीं You है looked him very sarcastic look. और बहुत ही अलग तरीके से आप उसको देखते हैं। अपराधी में नहीं है, अपराधी नहीं है, में नहीं है. Because I am speaking the truth, you angry with me? मैं सत्य बोल रहा हूँ इसलिए आप मेरे ऊपर गुस्सा करते You हैं। do whatever you want. I'm here for you. कुछ भी आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए But तैयार I हूँ। will not stop speaking. लेकिन मैं बंद नहीं होऊंगा If बात I करने। don't speak, I become jobless. You unable to feed me. और अगर मैं बात करना बंद करूंगा तो मैं बेरोजगार बनाऊंगा और आप मुझे खिला नहीं सकते। Nobody. So they have to be faithful to God. और मुझे विश्वास योग्य बनना है प्रभु के लिए। Come, let us do it together as a family. आइए साथ मिलकर परिवार के साथ इस कार्य को आगे Dedicate बढ़े yourself, Holy Spirit. I will listen to you. और समर्पण करो, पवित्र आत्मा मैं आपको सुनूंगा। I will come before you every day. मैं हर दिन आपके समूह आऊंगा। You teach me, you speak to me what I have to do that day. मुझे आप बात करो, मुझे सिखाओ मुझे क्या करना है। Second work of the Holy Spirit is to convict you about sin. और दूसरी पवित्र आत्मा का कार्य है कि पाप के बारे में आपको एहसास Many दिलाना। people in the world does not believe in Jesus Christ. बहुत से लोग संसार में यीशु पर विश्वास नहीं करते। In deep in their hearts, they know Jesus is a good. वो उनके दिल के अंदर उनको पता है कि यीशु भला है। Why they don't believe, but still they enjoying sinful life outside. और वो बाहर का जीवन जो पापमय जीवन है उसका आनंद वो उठाते हैं। When the Holy Spirit comes, convict you,
anything, everything against the very nature of Jesus जब Christ. पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो परमेश्वर के स्वभाव में जो कुछ विरोध में आप करते हैं That उसका जो है आपको वो Simply परिचय देता means है। if you don't allow the Holy Spirit, we remain same sinful, only saying praise the Lord, doing everything absolutely against the book. पवित्र आत्मा को काम करने को नहीं देते तो वैसा ही हम जीवन जीते हैं जिसके बोलना है कि पापमय जीवन जीते Why हैं। are you doing that? ऐसा आप क्यों You करते know हैं? you are a believer. आप जानते हैं आप विश्वासी हैं, Many of your friends knows you are a believer. बहुत से दोस्त जानते हैं आप विश्वासी हैं, Why are you doing unjust to you and to the friends who knows you as a believer? और आप उनके लिए अन्यायी क्यों बनते हैं जो आपके दोस्त और जो आपको जानते हैं आप विश्वासी है। Holy Spirit will convict you. पवित्र आत्मा आपको एहसास You दिलाता know है real joy of living when you give away your sinful life. और सच्चा प्रेम जीने का जब आप पापमय जीवन को त्याग As करते long हैं। as you live in sin, life becomes very rough. You never enjoy. जब आप पाप में जीते हैं आपका जीवन सही नहीं बनता है और इसका आनंद आप Your नहीं उठाते हैं। enemy is not the people, but your own sins. और आपका दुश्मन मनुष्य नहीं है लेकिन आपके पाप है। What is sin? पाप क्या है? You know something is right, आप जानते हैं एक चीज सही है but you are not doing it. लेकिन आप उसको नहीं करते हैं, That's called sin. इसको पाप कहते हैं। Don't think, pastor, हम लोग किसको गाली नहीं देता, किसको मारता है, मैं बहुत अच्छा, तुम्हारा अच्छा में क्या है? A filthy rags in the sight of God. और आपका अच्छापन क्या है प्रभु के सामने? मैले कपड़े के समान है। You're only good when the Holy Spirit with you. और आप तभी भले बनेंगे जब पवित्र आत्मा आपके साथ You're है। only good when you give up your sinful life. और तभी आप भले हैं जब पापमय जीवन को आप छोड़ देते हैं। How do you know that is sin? और आप कैसे जानते ये पाप है? Suppose some people thinking gossiping is the right. और थोड़े लोग सोचते हैं कि चुगली करना सही है। They love it. They enjoy doing it. चुगली करना उनका अधिकार है They enjoy loving it. और वो उसका आनंद उठाते Every हैं look and corner they'll speak that. और हर एक कोने कोने में ये चुगली करते हैं। हाँ, मैं आपको बोलता है, मैं आपको बोलता है, क्या बोला चुगली? उसको कुछ दुख भी नहीं है, सुनने वालों को दर्द होता है। क्यों? भूत का आत्मा अंदर आता है। Hello, are you listening? When the Holy Spirit touches, you will know, I'm destroying somebody's character. जब पवित्र आत्मा आपको छू लेता है तो आपको ये एहसास होता है कि इसका चरित्र को आप नाश कर रहे हैं Without knowing, I'm speaking against that person. और बिना जानते हुए उस व्यक्ति के विरोध में बात करता That हूं। day you will make it. I never do that again. और तभी आप निर्णय लेते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। Only Holy Spirit can bring conviction. और पवित्र आत्मा ही इसका एहसास आपको दिलाता है। Only believer listening to you. सब विश्वासी सुन रहे हैं? Holy Spirit convict you about sin. पवित्र आत्मा आपको पाप के बारे में एहसास दिलाता है। Sometimes I'm disheartened to see some people always same thing they're doing it. मुझे बहुत दुख होता है, मेरा दिल दुखित हो जाता है That- कि लोग हमेशा वही करते हैं That affecting the church growth. और इसका प्रभाव कलीसिया के बढ़ोतरी पे That होता है affecting the joy and happiness of the church. और इसका प्रभाव जो है कलीसिया के आनंद और खुशी पे पड़ता है। I cannot go and speak to them. They're not ready to listen. और मैं उनके जाकर बात नहीं कर सकता क्योंकि वो तैयार नहीं है सुनने के लिए। By doing what they gain? ऐसा करने से उनको क्या मिलता है? Nothing, inviting disaster to the house. नहीं, लेकिन नाश जो है उनके घर पे आता है। So Holy Spirit will convict you. पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाता है Third work of the Holy Spirit, He will convict you about righteousness. और तीसरी बात जो है पवित्र आत्मा आपको नीतिमत्ता के बारे में एहसास दिलाती है। What is our righteousness? और हमारा जो नीतिमान क्या है? Jesus gone back to heaven. यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया He is there for me at the right hand of God. और वो प्रभु के दाहिने ओर बैठा है He is interceding for me. He is praying for me. और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। My heart had the peace and love and joy
Jesus brought into my life. और मेरे जीवन में आज आनंद और खुशी और शांति है क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में That लेके आया। means when you have the Holy Spirit with you, जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है you don't plead for anybody's recognition. और किसी की पहचान के लिए आप भीख नहीं मांगते You will हैं never be a buttering type person. और किसी को आप मस्का नहीं लगाते हैं You always speak what is right. और आप वही बात करते जो सही है, Because you know at the end, this is the only thing work for me, work for the listener. क्योंकि अंत में आप जानते यही मुझे काम करता है मेरे लिए और सुनने वाले के What लिए। is righteousness? और नीतिमान क्या है? Jesus is the righteousness. और यीशु मसीह नीतिमान है। What is righteousness? और नीतिमान क्या है? Your obedience to word of God give you a new life called righteous lifestyle. और प्रभु के वचन के आज्ञाकारी बनते हुए प्रभु ने आपको एक नीतिमान जीवन दिया है। Jesus brought his righteousness into our life. यीशु मसीह के वचन ने हमारे जीवन में नीतिमत्ता But he लेके आया। became sacrifice for you and I. और वो हमारे लिए बलिदान बना। So when the Holy Spirit is there, you never plead to anybody's recognition. और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहता है तो किसी आप अपने पहचान के लिए Even किसी के पास भीख like नहीं I'm a मांगोगे। pastor, somebody says something wrong. How am I going to prove? और कोई कहता है कि मैं गलत हूं तो मैं कैसे उसको साबित करूंगा कि मैं सही हूं? I never done it. और मैंने कभी किया नहीं, But people are accusing it. लेकिन लोग मेरे पर दोष लगाते हैं। I don't have to tell I'm a good man. Please accept me, good man. मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे स्वीकार करो। My destiny already written in the book. और मेरी मंजिल इस पुस्तक पे लिखी है। Whatever written in this book about me, it will come to pass. और जो इस पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है ये संपूर्ण होके रहेगा। So your righteousness is Jesus Christ. और आपका जो नीतिमत्ता है वो यीशु मसीह है। You do what he says. और आप वही करो जो आपको And करना है। surely you'll have better future. और सचमुच आपको उज्जवल भविष्य रहेगा। Because sin take away every opportunity God has for you. और पाप जो है हर एक अवसर को निकालता है जो प्रभु ने आपको दिया है। When you put the sin away, जब पाप को आप अलग रखते हैं through the conviction of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के एहसास के द्वारा, God's opportunities come and take over you. और पवित्र परमेश्वर के जो है अवसर जो आके आपके ऊपर आकर आपको घेर लेते हैं। मेरे को इतना डरा तो शैतान कितना डरा। Hello. Second is, third one is God to convict you about righteousness. और तीसरी बात जो परमित आत्मा जो आपको नीतिमत्ता के बारे में एहसास Abraham दिलाती was है। a righteous man. और अब्राहम नीतिमान व्यक्ति था। He obeyed what God said. प्रभु ने जो कहा उसको उसने आज्ञा पालन To किया। obey what we are hearing, we need a Holy Spirit help. और जो हम सुन रहे हैं उसको पालन करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद When you're चाहिए। convicted by something, you will go by that. और जो इसका एहसास आपको मिलता है उसके साथ आप A चलेंगे। nice, wonderful electric socket is there. यहाँ पर बहुत ही सुंदर इलेक्ट्रिक सॉकेट है। Sister Ankita, can you come and put a finger inside? अंकिता आकर आप इसमें अपनी उंगली डाल सकते हैं इस सॉकेट में। क्यों? मेरे केक को और मिला अभी तक मार के। अभी करंट देखो तो मैं अशोक को बुलाता है, मैं नहीं टच नहीं करता। Why? Conviction मिला, ये खतरनाक देखो तो अच्छा है, हाथ डालो तो पकड़ेगा। Understood what I'm saying? That's called conviction, lifetime experience. और जीवन भर आपका अनुभव आपको मिलता And है। you will naturally live with the experience rest of your days. और जो अनुभव आपको मिला उस अनुभव के साथ आप पूरे जीवन भर जीते हैं। Hello. Therefore, we, you and I, everybody have the conviction of righteousness. इसलिए हमेशा हमें जो है हमें नीतिमत्ता के एहसास हमें मिला है। Then always you remain under the will, the direction of Jesus Christ. और हमेशा आप प्रभु की इच्छा में और उसके मार्ग में बने रहेंगे। Fourth work of the Holy Spirit is a convict about judgment. और किसी का जो है न्याय के प्रति परमेश्वर एहसास दिलाता है। न्याय मिलेगा सबको एक दिन, right? Jesus said, devil stand defeated. यीशु मसीह कहता है कि शैतान हार गया है। That he wasn't died yet. और तब तक वो मरा नहीं था। He said, devil stand defeated from you. और वो कहता है कि शैतान आप में से जो है हार गया है। Why? What he said that? ऐसा क्यों कहा? Because you heard my word. क्योंकि आपने मेरे वचन को सुना। Before you live in darkness, now you came to the light of my word. पहले आप अंधकार में जी रहे थे, आज आप मेरे वचन के उजाले में आए। He said, devil stand, prince of the world,
defeated. इसलिए शैतान जो है वो हार चुका है। Sometimes we see media so much dhamki against the believers. और बहुत से मीडिया जो है धमकी देते हैं विश्वासी के विरोध में Dhan parivartan. और धर्म परिवर्तन के बारे में What बोलते हैं। actually they're saying? और क्या वो कहते हैं सच They're में? putting hatredness in the mind of the Hindus against Christians. That's और it. वो जो है हिंदू के दिलों में नफरत डालते हैं क्रिस्ती के विरोध में। If there one person converted, why whole nation you are saying why? और एक व्यक्ति जो है अगर अपना वो मन बदला है तो आप कहते हैं कि पूरे दुनिया ने बदल It is दिया। another way of putting hatredness into the majority of community. इसलिए जो बहुसंख्यक है उनके बीच में नफरत डालने का एक प्रयोग है। Already they destroy Hindu Muslim. और इसको पहले से हिंदू मुस्लिम के विरोध में नाश Now हुआ they're है। putting on dharm हमारो सब लोग जाके पापा गरीब लोग को जाके मारता है। अरे क्या शिक्षण, क्या देश हो सकता है? Correct? It is a नफरत का आत्मा पीछे बैठा है। So you don't get scared of all this. और इससे आप डरे नहीं। You have the right to do what you want to do according to Indian Constitution. और भारत के संविधान के अनुसार आपको यह अधिकार है करने के लिए जो संविधान में लिखा है। Same thing this word of God gives to you. और यही जो है आपको पवित्र शास्त्र देता If you है। want to believe, otherwise you don't have to. अगर आप विश्वास करते तो विश्वास करें, नहीं करना है तो We नहीं don't करो। force anyone. Even God does not force anyone to believe, और including you. परमेश्वर जो किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता है किसी प्रकार का। That's the beauty of God. ये प्रभु की सुंदरता है। God never forced me to be a believer. और परमेश्वर ने कभी आपको दबाया नहीं I विश्वास read करने the में। scripture, I saw my condition. और मैंने वचन पढ़ा और मेरी अवस्था मैंने जान ली। I wept and I recognized I'm a sinner in the sight of the living और God. मैंने ये एहसास पाया कि प्रभु के सामने मैं पापी हूँ। That time we have so many idols in our house. और तभी हमारे घर में बहुत सी मूर्तियां थी। Through the conviction, my eyes from here, I put it on the living God. और मेरे एहसास के द्वारा मेरे आंखें मैंने यहाँ से वहाँ प्रभु के ऊपर डाली। It is my wish, it is my will. ये मेरी इच्छा है, ये मेरी स्वच्छ Who इच्छा है। can stop it? और कौन उसे रोक सकता I'm है? not a robotic person. और कोई रोबोटिक व्यक्ति I'm नहीं। not a stone or clay. और मैं कोई पत्थर नहीं हूँ। I'm a living being with the ability to think and proceed. और मैं जीवन जन हूँ जो मैं सोच सकता हूँ, मुझे सोचने का मन है। Hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? When you believe in Jesus Christ, जब आप प्रभु पर यीशु पर विश्वास रखते हैं judgment surely for everybody. और न्याय हर एक का होगा। Every human being born in this earth one day shall be judged. जब पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जाति जो जन्मा हुआ है उसका न्याय होगा। This generation will not escape judgment. और इसलिए कहता है कि ये पीढ़ी जो है न्याय से वंचित नहीं कौन रहेगी। सा पीढ़ी? इंसान पीढ़ी। और एक बार पीढ़ी बन गई तो इंसानियत पीढ़ी बन आदम गई। से कभी यीशु ओ दिन तक कितना लोग पैदा हो गए, सबका नाम सबका नंबर खुदा का पास है, सरकारी के पास नहीं रहेगा। आमेन। हेलो, सबको एक दिन न्याय मिल जाएगा। Why? How you will escape? और आप कैसे छूटोगे इससे? Because Jesus taken away your judgment. और यीशु मसीह ने आपका न्याय ले लिया है। Who will tell you this? और कौन कहता है? Holy Spirit will tell you. और पवित्र आत्मा कहता है। Because we have this understanding, और ये समझ हमारे पास है। we have no fear of the devil and the sin. और शैतान का कोई डर हमारे अंदर नहीं We have है। no fear of whatsoever happening in the world. और संसार में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें डर नहीं Do है। you know one day we will die? हम जानते हैं कि हम मरेंगे For us there is no death. और हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं है। Spirit depart from us. और आत्मा जो हमसे चला जाता है Go to God back again. और वो पिता के पास लौट के The लौटता people है। don't know Jesus. और जो लोग यीशु को नहीं जानते Already they are spiritually dead. और वो आत्मिक तरह से मर चुके हैं Later they are forever separation from God in hell. और उनका जो है वो अलगपन हो जाते हैं और वो नरक में गिर जाते They हैं go through two kinds of death. और दो प्रकार की मृत्यु में जाते For हैं। us, Jesus destroyed death, stink of sins. और यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु और पाप का नाश किया है। So you don't have to worry about what happens to you. और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्या होगा As the आपका। day passes, you should be excited. I'm going to meet with my Lord Jesus. जैसे दिन बीते जा रहे हैं आपको उत्साहित होना है कि मैं यीशु को मिलने के जा रहा So हूँ। it is God-given inner unshakable conviction that we stand before the judgment seat of God one day. और ये हमारे पास ये एहसास है और न हिलने वाला एहसास है कि एक दिन न्याय होगा।
I tell myself always, मैं अपने आप से हमेशा ये बात कहता हूँ, you will surely go to heaven. हमेशा आप स्वर्ग में जाओगे। मैं मेरे को बोलता मैं स्वर्ग में जाएगा. मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं स्वर्ग में Why? जाऊंगा। I have no doubt inside. मुझे कोई शक नहीं है, I have experience of God. मुझे प्रभु का अनुभव है। I experience joy, happiness and peace. परमेश्वर का आनंद शांति का मैंने अनुभव पाया God है। picked me up the miry clay, give me a wonderful life to live. और परमेश्वर ने मुझे कीचड़ से उठाया और नया जीवन जीने को It दिया। is nothing to do with the money, whatever people running for. और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है जो लोग पैसे के पीछे भागते It's हैं। a conviction of the Holy Spirit inside makes you unshakable for Jesus और Christ. पवित्र आत्मा का ऐसा जो मेरे अंदर है मुझे कभी हिलाता नहीं है। What a feeling you can have. क्या वो भावना है आपके अंदर? See, your bhavana has to be strengthened to the understanding of God's word. और आपकी भावना जो मजबूत बननी चाहिए प्रभु के वचन के समझ के द्वारा। Fifth work of the Holy Spirit. पांचवी बात पवित्र आत्मा का He will कार्य, guide you into all truth. और सत्य के मार्ग में आपको लेके जाएगा। This is the truth. ये सत्य है। The world will be judged by this book. और संसार का न्याय इस पवित्र शास्त्र से होगा। Today, this book is facing highest attack. और इस पवित्र शास्त्र पर बहुत से आक्रमण हुए हैं। More than any book, highest volume be sold in the world, this book. और सबसे बहुत ही किताब अगर कोई बेची है तो ये पवित्र शास्त्र है। In UP, one man had a Bible in his house. They put him in jail. और यूपी में एक व्यक्ति के पास पवित्र शास्त्र था, इसीलिए उसको जेल में डाला गया। That jail is too small to have that man. और वो जेल जो है बहुत ही छोटी है उस व्यक्ति को रखने के लिए। The jail is too small. और वो बंदी गृह जो है बहुत ही छोटी है। God will bring him out surely. और सचमुच प्रभु उसके बाहर लेके आएगा। Certainly, he will be a preacher of this book one और day. सचमुच एक दिन प्रभु के वचन का वो प्रचारक बनेगा। Don't bow down to the fear. और डर के सामने झुको मत। Fear directly from the devil, from the hell. और डर जो है शैतान से आता है, नरक से आता You है। should despise fear, despise any shame, fear and guilt, because Jesus taken away everything from you and set you free. और परमेश्वर ने आपके अंदर से डर और लज्जा को निकाला है और आपको आजाद किया है। One day I was watching one video. और एक वीडियो में देख रहा था, One big vulture was sick. They rescued it. और एक बड़ा उकाब गिद्ध जो है वो उसको उसने बचा लिया। So many days they took her, made it healthy, और उसको अच्छा बनाया, स्वास्थ्य बनाया, taken the mountain top, और उसको पहाड़ पे लेके जाए set him out of the cliff. और उसको बाहर निकाला। The vultures still don't believe in themselves. और गिद्ध जो अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करता है। You know, when you became slave to sin, you've been bound by the devil. और जब पाप के लिए गुलाम बन जाते हैं तो शैतान से आप जकड़े हैं। The vulture took around half an hour to understand he can fly again. और इस गिद्ध को जो ये पता चलने के लिए आधा घंटा लगा कि वो फिर से उड़ सकता है। Devil always attacks your mind. और शैतान हमेशा आक्रमण आपके मन पे करता है। Tell you things exactly against this book. और इस पुस्तक के विरोध में आपसे बात करता है। If you allow devil to take your mind, believe me, you lost your anointing. अगर आप अनुमति देते हैं शैतान को कि इसके ऊपर हावी होने के लिए, विश्वास करो आप खत्म हो Not जाएंगे। only you'll be bound, you never lift your head toward God. और आप बंधे रहेंगे और अपना सिर उठाकर स्वर्ग की ओर नहीं देख पाएंगे। See, some people always put their head down. आप देखते हैं थोड़े लोग हमेशा अपने सिर को नीचे रखते हैं Problem in their thinking. और समस्या उनकी सोच So में। Jesus, when I set you free, you are free indeed. इसलिए प्रभु कहते हैं जब मैंने आपको स्वतंत्र किया आप सचमुच You got स्वतंत्र to हैं। experience Jesus every day. और आपको अनुभव करना होगा यीशु मसीह का हर दिन। The Holy Spirit will lead you into all truth. और पवित्र आत्मा आपको हर एक सत्य में मार्गदर्शन करेगा। If you don't read your book, how Holy Spirit lead you? अगर आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कैसे करेगा? Before we used to give free Bible, now we stop it. पहले हम मुफ्त में बाइबल देते थे, अभी हमने बंद किया। घर का टेबल का नीचे, कोट का नीचे, फुक्कट सब जगह में बाइबल। I got felt sad. मुझे बहुत ही दुख हुआ। Is it the value of the Bible?
ये कीमत है इस पवित्र शास्त्र की। That book can make that person king, और इस पवित्र शास्त्र ने उस व्यक्ति को राजा बनाया can make him landlord. और उसको जमींदार बना सकता है। Head is not proper. Where the Bible reach? Under the table, under the chair, where all things. You know what I'm saying? अगर आपका मन सही नहीं तो बाइबल कहाँ पढ़ता है? आपकी कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे। You read your Bible every day. इसलिए अपने पवित्र शास्त्र को हर दिन आप पढ़े। Holy Spirit leads you to understand what meant for you that day. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है समझने में कि आपको क्या चाहिए उस दिन। Now listen to me carefully now. ध्यान से सुनो, You are a believer. आप विश्वासी है। Hello? Did I say correctly? I said you are a आप विश्वासी है। children, come and sit. Yeah. You are taking others' attention. You are a believer. आप विश्वासी है। Listen to me. One day you are not reading Bible. अगर एक दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं Months together you are not reading Bible. और बहुत दिन से आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, What is in your mouth people to listen? और क्या आपके मुंह में जो लोग सुनेंगे? Listen, I'm saying it again. फिर से कहता हूँ, You are a believer. आप विश्वासी है Months together you are not reading the और Bible. महीनों से बाइबल आप नहीं पढ़ते हैं, What is in your mouth for people to listen? और क्या है आपके मुंह में जो लोग सुनने सकते हैं? Now what happened? You fight. अब ये क्या होता है? लड़ाई करते Why हैं। they are not listening to me? ये मेरे सुनते नहीं हैं Why they are not coming to me? और मेरे पास नहीं आते हैं। Problem is where? समस्या किधर है? You don't have the word of God in your mouth. और आपके मुंह में प्रभु का वचन नहीं है। When you read every day, जब हर दिन आप पढ़ते हैं, Holy Spirit will lead you to understand what you needed for that day. और उस दिन जो आपको जरूरत है उसके और पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करता है। Jesus, pray, Father, give us our daily bread. और प्रार्थना के पिता मुझे रोज की रोटी मुझे देना। Every day you must read and understand which fitting in your spirit and mind. और हर दिन आपको समझना होगा कि ये वचन आपके मन में बैठा रहना चाहिए। That's the way you grow in faith. इस प्रकार से आप विश्वास में What बढ़ते you हैं read have to fit with your faith and your mind. और जो आप पढ़ते हैं उसको विश्वास में मिलाते हैं और मन में रखते हैं। That is the duty of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी Bible says, है। Holy Spirit guide you into all truth. पवित्र आत्मा आपको सत्य में अगुवाई करता है Not you say every time only one scripture. और हर दिन वही वचन आप नहीं कहते हैं You will understand so many scriptures. और आपको बहुत से वचन समझ You में become आएंगे educated pundit for Jesus और Christ. आप शिक्षित हो जाएंगे यीशु मसीह के लायक You become a qualified teacher for Jesus Christ. और आप जो है उत्तम पाए हुए शिक्षक बनेंगे यीशु मसीह के लिए। Have we listened to the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा को हम सुनते हैं? If not, you will suffer. अगर नहीं तो आप कष्ट झेलेंगे। You will not experience the glory of God. आप पवित्र परमेश्वर की महिमा को नहीं So देखेंगे। some people always frowning face, complaining. What's the problem here? इसलिए हमेशा देखते उनके चेहरे हमेशा उदास रहते हैं। Glory of God is not manifesting. जब तक परमेश्वर आपके अंदर काम नहीं They करता are है holding on something yesterday's understanding. और कल की सोच के ऊपर वो निर्भर है But God wants you to understand today. और परमेश्वर आपको कहना चाहता है आज समझो। Growth is everyday's business. और बढ़ोतरी हर दिन की बात है। You and I should grow every day for Jesus. आप और हमें हर दिन प्रभु के लिए बढ़ना है। Sixthly, और छठवीं बात, Holy Spirit will speak what He hears. और पवित्र आत्मा वही बोलेगा जो वो सुनता है। You are writing, you can write Colossians chapter 2:10. और कोलोसियों का 2:10 अध्याय 2 अध्याय Holy 10 वचन। Spirit never contradict with the Bible. पवित्र आत्मा कभी भी प्रभु के वचन में विरोधाभास नहीं Sometimes I करता। see people speaking about you should not give tithes. नया किताब में नहीं लिखे तू कौन सा भी कहता तुम जानता भी नहीं ये बोलो first correct. नया किताब में आया तो you got to give all you have. और नए किताब में जो आपके पास है सब कुछ आपको देना है। नया किताब में आने का पसंद कर ली पुराना किताब में बैठो ना वो भी नहीं तो by this kind of people may brought many people to the street. और ऐसे प्रकार के लोग विचारों के द्वारा बहुत से लोग आज रास्ते पे Holy हैं। Spirit never contradict to the Bible. और पवित्र आत्मा कभी प्रभु के वचन के विरोध में From नहीं जाता। Genesis to Revelation, Holy Spirit always say, Amen, yes it is. और उत्पत्ति से प्रकाशन तक पवित्र आत्मा एस और आमेन है।
Problem is with us. समस्या हमारे पास We है have all my silly thoughts in our mind. और हमारे पास सब अलग अलग विचार है हमारे In मन other में words, I say stupid thoughts in our mind. और बहुत ही मूर्ख की बातें हैं Without thoughts you are reading, you never understand. और अभी तक आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं With आ a रहा false thought till the neck, what goes in? Nothing goes in. और जो आपका जो अंदर वचन ही नहीं जा रहा है When you come to God, empty yourself. जब प्रभु के पास आते अपने आप को खाली करो That's why God forgive me, cleanse me, sanctify. You asking God to empty your इसलिए spirit. प्रभु मुझे क्षमा करो मुझे शुद्ध करो इसका मतलब है कि आप प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझे खाली करो Then God will fill you with the new things. और परमेश्वर आपको नए चीजों से भर देगा The Holy Spirit job is to hear from Jesus coming and give it to you. पवित्र आत्मा का काम है कि यीशु के पास सुनना और आपको आके बोलना Because everything God the Father given to Jesus. क्योंकि हर एक चीज जो पिता ने यीशु मसीह को दी है, His name is over every authority and power. और उसका नाम हर एक अधिकार और हर एक सामर्थ्य से ऊपर है Because Jesus alone suffered and died and risen. Therefore, Father in heaven, give every authority and power under the hand of Jesus Christ. और पिता ने हर एक सामर्थ्य और हर एक अधिकार इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को दिया है क्योंकि वो यीशु So मरा और Holy जिंदा Spirit हुआ will not cause you to fight with the church or Bible. और पवित्र आत्मा कभी भी आपको नहीं कहेगा कलीसिया से और वचन से Holy झगड़ने के Spirit लिए। only help you to go along with the Jesus और Christ. पवित्र आत्मा हमेशा आपको यीशु के साथ जाने को बोलेगा Like example, you are worshiping God. और उदाहरण के तौर पे आप आराधना कर रहे You हैं hear the voice of God. प्रभु की आप आवाज सुनते हैं Holy Spirit speaking to you. और पवित्र आत्मा आपसे बात The करता word है is sent by Jesus through the Holy Spirit और- in your hearing. और ये वचन जो है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कान में भेजा है When you hear that, और जब आप उसको सुनते you हैं run to Jesus. आप यीशु के पास दौड़ते हैं Your worship will improve. और आपकी आराधना अच्छी बनती Your है prayer will improve. आपकी प्रार्थना सुधारती Your है love for one another will improve. आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति You're बदलता है never rude with anyone. और- You're able to take care of people. और किसी के विरोध में आप क्रूर नहीं बनते हैं लेकिन उनका ख्याल आप करते हैं Holy Spirit is wonderful. और पवित्र आत्मा सुंदर है Seventh work of the Holy Spirit, He will speak what yet to come. और सातवीं बात जो पवित्र आत्मा जो चीज आने वाली है उसके बारे में बोलता है Jesus speaks to you about the future. और पवित्र आत्मा भविष्य के बारे में बोलता When I है was in England, जब मैं इंग्लैंड में था I was a missionary there. और वहां पर मैं मिशनरी I was था absolutely disheartened one night. और एक दिन मैं टूट चुका था I was sitting down and crying and praying. और मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा God था took me to the scripture. और परमेश्वर ने मुझे वचन की ओर लेके During गया the worship time, I was asking God, when this scripture going to be और fulfilled? मैं प्रभु से मांग रहा था प्रभु ये वचन मेरे जीवन में कब संपूर्ण You होगा spoke to me, you will give me people. और आपने मुझे कहा था कि आप मुझे लोग देंगे When the people going to come? और कभी लोग आएंगे That's my future. ये मेरा भविष्य था Also, God told me in my trouble. और मेरे समस्या में प्रभु ने मुझसे ये I बात don't want to कही useless those days. और मैं उस दिन का बोलना नहीं चाहता God spoke to me this. और प्रभु ने मुझे ये बात बोली This is my future. ये on मेरा earth. भविष्य है आज है Holy Spirit tell you the future about your life. पवित्र आत्मा आपको भविष्य के बारे में बताएगा If आपके you're बारे में confused any means in your life, अगर आपके जीवन में आप दुविधा में हैं you don't know what to do with your और life, आपको पता नहीं क्या करना है don't be afraid. डरो मत Sit down before God. प्रभु के सामने बैठो Ask the Lord to speak to you. प्रभु से मांगो प्रभु बात करने Jesus के लिए loves you, died for you. यीशु मसीह आपके लिए प्रेम करता है आपके Even लिए your मरा है parents haven't done that. और आपके माता पिता ने Your husband and wife never done it. और आपके पति पत्नी ने कभी नहीं Who किया is like our Lord और Jesus? यीशु के जैसा कौन है There is none. उसके जैसा कोई भी नहीं Therefore, है love him and love him only in the superior way. इसीलिए उसको महानता में प्रेम करो उससे ही The प्रेम Holy करो Spirit speaks to you about your future. और पवित्र आत्मा भविष्य के बारे में बोलता है Once Holy Spirit tells you, you are settled. जब पवित्र आत्मा आपको कहता है आप स्थिर बन You will know जाते हैं you born in this world to do this job. और आप इस दुनिया में जन्मे एक कार्य I करने won't के लिए look for any other job. मैं और किसी काम के लिए नहीं रुकता Even people offer me, I said, I don't want it. लोग मुझे काम देते मैं कहता हूँ नहीं चाहिए My job and my passion for my church alone. और मेरा काम जो है मेरी कलीसिया ही मेरा काम Church है is my first love. और कलीसिया मेरा पहला प्रेम I'm है very jealous for my church. और मैं बहुत ही जलन रखता हूँ कलीसिया Because के लिए God used this life to display in you. और परमेश्वर ने इस जीवन को उपयोग किया आपके अंदर दिखाने के लिए Came through this word. और ये आया इस वचन के द्वारा
If you are confused, sit down and pray, God, what about me? What I have to do? अगर आप दुविधा में हैं, प्रभु के सामने बैठे और प्रभु से कहे, प्रभु क्या Tell me, है? Lord, what is the meaning of the what I have to do for you? प्रभु मुझे बताओ, मेरा अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या, मुझे क्या करना? Jesus said, my Holy Spirit will reveal to you. और यीशु ने कहा कि मेरी पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगी. I pray to God, मैं प्रभु से मांगता हूँ, all of you understand your future. और सब लोग अपने भविष्य को समझे. What a powerful community we will be. और कितने सामर्थ्यशाली समाज हम बनेंगे. We will shake this city. और इस शहर को हिला देंगे. People will runningly come to the church. और लोग दौड़ते हुए कलीसिया में आएंगे. We need to hear the voice of God. लेकिन प्रभु के वचन आवाज को सुनना होगा. And eighth work of the Holy Spirit. और आठवीं बात पवित्र आत्मा He will की. bring glory to Jesus Christ through you. और यीशु मसीह को महिमा लेके आएगा आपके द्वारा. Holy Spirit is not to self-glorification. पवित्र आत्मा अपने आप की महिमा नहीं करता. Holy Spirit hear from Jesus. पवित्र आत्मा यीशु से सुनता है And He will speak to you. और वो आपसे बात करता है. You heard it. और आप उसको पकड़ते And you're हैं excited about और Jesus. उत्साहित होते हैं यीशु के बारे में. Holy Spirit tell Jesus, look at it. और यीशु पवित्र आत्मा कहते हैं, देखो उसको. I did my work. मैंने मेरा काम किया. What you gave me, I got a Meenakshi. Look at the Meenakshi. Meenakshi operating laptop. Before deciding that, now laptop. I'm sure your house, nobody done this job. So your life become glory to Jesus. Correct? That's the way Holy Spirit works. और पवित्र आत्मा इस प्रकार से वो काम करता He will है not self-glorifying person. और अपने आप की महिमा नहीं करता है. Today you have to be careful when you give possession to somebody. और किसी को आप पद देते बहुत ही सावधानी रहना पड़ता They're है. trying to kick you out. बाद में वो आपको I know some people went and told people, पहले pastor pray अच्छा होता था, अभी कुछ नहीं होता है. तू मेरा बाप है क्या? वो मर गया, चला गया. Hello, that kind of people are there, taking advantage, self-glorification. You don't do it. इस प्रकार के लोग हैं जो महिमा अपने आप पे लेते हैं. आप ऐसा मत करो. Unless God doesn't give, you can't have it. जब तक परमेश्वर आपको देता नहीं है तब तक आप इसे पा नहीं Either सकते. it's me, either it's you, anybody. भले वो आप हो, मैं हो या कोई भी हो. When the Holy Spirit comes on you, you'll glorify Jesus. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तब आप यीशु मसीह को महिमा देते Why हैं. so many people are bitter inside? और बहुत से लोग अंदर कड़वाहट क्यों रखते हैं? Actually or indirectly, without knowingly, they're promoting themselves. और जानकर या अनजाने में वो अपने आप को बढ़ावा देते हैं. You get a bitter, your heart will get bitter. और आपका हृदय जो है वो कड़वाहट से भरता है. Holy Spirit helps you to glorify Jesus Christ. पवित्र आत्मा आपको मदद करता है यीशु को महिमा देने में. Is it clear to you? You must understand this. इसको आपको समझना होगा. That no praising, complaining, murmuring in the church. Only glorification of Jesus Christ should be done through you and me. और कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए. लेकिन एक ही मकसद होना चाहिए कि यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा. That's what Jesus introduced to the Holy Spirit. इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का परिचय दिया. You love me, correct? आप उससे प्रेम करते हो. I'm sending you a trustworthy person. और भरोसेमंद व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ. He will be with you. वो आपके साथ रहेगा. He will continuously help you to love me and glorify. वो लगातार आपकी मदद करेगा मुझसे प्रेम करने के लिए. Ninth work of the Holy Spirit. और नौवीं बात पवित्र आत्मा की. You find Acts 1:8. और प्रेरितों के काम 1 और 8 में लिखा है. When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है you shall receive power. और आपको सामर्थ मिलता है. Everybody say power. सब लोग कहे सामर्थ. Yes. थोड़ा सामर्थ बोलो. वाले ने कुछ बोला भी नहीं वालेरियन. Say सामर्थ. काजल से सामर्थ. No good. सामर्थ. निर्मला नो क्या बोला? सामर्थ. आप सामर्थ बोला तो हेलो निर्मला, राधा ऊपर सीलिंग का मार के नीचे आना चाहिए. That's the power. इसको सामर्थ कहते हैं. When bomb blast mean, everything blast into टुकड़ा टुकड़ा. जब बम फटता है तो सब चीजें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं. सर हम ये साइड में जाएगा. से सामर्थ. One more time. ऐसे लेगा. बोलो सामर्थ.
Wonderful believer you all are. Nice people. बहुत सुंदर विश्वासी है आप। God, I thank and praise you gave these people into my hand. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको कि इतने अच्छे लोग आपने मुझे दिए हैं। I will take care of all of you. मैं आपका ख्याल रखूंगा। You all are precious to me. आप सब लोग मेरे लिए अनमोल है। I love all of you equally. No मैं partiality. समानता में आपसे प्रेम करता हूं। आप बटाई दियो नहीं दियो still मैं प्रेम करता हूं. अगर आप दशवांश दे नहीं दे फिर भी मैं आपसे प्रेम करता I'm हूं committed for you. और मैं समर्पित हूं आपके लिए। Hello? हेलो। When the Holy Spirit comes, you receive power. जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ आपको मिलता You है। go for evening prayer walk today. अगर आज शाम को प्रार्थना आप चलते हैं, कुछ नहीं बोला अभी सिस्टर अरुणा prayer walk सब लोग आएगा सामर्थ मिल गया Bible says when Holy Spirit comes you receive power to be witness for Jesus. और जब पवित्र आत्मा आता है आपको सामर्थ मिलता है गवाह बनने के लिए यीशु के लिए। सामर्थ बोले मेरे को ऐसा देखना सामर्थ है Some people are looking कितना भी मैं सुधरेगा नहीं मैं वो आप सुधरेगा आप सुधरेगा आमेन। When the Holy Spirit comes, how the old man preaching, he will preach like that. और जब पवित्र आत्मा आता है जैसे ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है वैसे आप प्रचार करेंगे। I may be old for you, young man still inside. मैं आपके लिए भले बुढ़ा लगता हूं लेकिन मेरे अंदर नौजवान है। My wife is getting very happy. और मेरी पत्नी बहुत खुश है। We never get tired. हम कभी थकते नहीं हैं। We never get tired. हम कभी थकते नहीं हैं। Our power is the Holy Spirit. हमारा सामर्थ पवित्र आत्मा When we है work inside, we become powerful. और जो हमारे अंदर है जिसके द्वारा हम सामर्थशाली बनते हैं। Let me say this to close it. और मैं ये बात कहकर समाप्त करना One चाहता sister हूँ। in our church, before she was little, shaky. और एक बहन है हमारे कलीसिया में जो पहले बहुत हिलती डुलती थी, Now she became very strong. अभी बहुत वो सामर्थशाली बनी। I see many Sundays, she does not, without knowingly, she turned to the wall, crying and worshiping. मैं देखता हूँ हर इतवार को कि वो अपने आप को मुड़ती है एक दीवार की तरह और वहां पर वो रोने लगती है। Sister Cecile, I'm talking about you only. और कोई नहीं। बहन मैं आपके बारे में बहुत When the Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है your lifestyle will change. आपका जीवन का तरीका बदलता है You will have no shame of anybody. और किसी की शर्म आपको नहीं You रहेगी will long for His presence. और आप तरसते रहेंगे उसकी You long to उपस्थिति में। say how much you truly love Him. और आप तरसेंगे कि कितना प्रेम आप उससे आप करते हैं That दिखाने के tend to be लिए। a power in your life. और ये सामर्थ आपके जीवन में रहे। Believers, विश्वासियों, your beauty in your praise and worship. और आपकी सुंदरता आपकी स्तुति और आराधना में। ये कपड़ा कीपड़ा कुछ फायदा का भी नहीं है। ये कपड़ा पिकड़ा कुछ फायदा नहीं आप है। एक बार शैतान शुद्धि करने वाला है तो शैतान आपको डरेगा। आमेन, ये हमारा सामर्थ, आमेन। ये सामर्थ्य हम लोग खुदा के लोग जीतेगा, प्रभु का पास लेके आएगा। तैयारी के वो भी यीशु के लिए चलो जाए, वो आपका कर्तव्य याद रखो। आमेन। Come, let us stand together. आइए हम सब खड़े हो जाए। If you forgot everything what I preached to you, अगर मैंने जो प्रचार किया आप अगर भूल गए हो, but one thing you got to remember: लेकिन एक बात को आपको याद रखना होगा, without the Holy Spirit, you became zero. और पवित्र आत्मा के बिना आप शून्य हैं। Without the Holy Spirit, you became zero in your spiritual life. और पवित्र आत्मा के बिना आपके आत्मिक जीवन में आप शून्य हैं। But the Holy Spirit waiting to help you. और पवित्र आत्मा प्रतीक्षा कर रहा है Holy मदद करने। Spirit, the faithful God. और पवित्र आत्मा विश्वास योग्य परमेश्वर That's why है। Jesus given you the Holy Spirit. इसलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा आपको दिया है। He is a teacher. वो आपको शिक्षा He देता will है, counsel you. वो आपको सलाह देता He है, never misguide you. वो आपको कभी झूठी रास्ता नहीं He will दिखाएगा, always use it to glorify Jesus Christ. हमेशा आपका उपयोग करेगा प्रभु को महिमा देने में। I want you to take 1 minute and pray. मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप ले प्रभु के लिए। Invite the Holy Spirit into your life. पवित्र आत्मा को स्वागत करें अपने जीवन में। Saying, Holy Spirit, I'm sorry. कहे पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, I never give you place in my life. मैंने कभी आपको स्थान नहीं दिया मेरे जीवन I में। ask you to forgive me. मैं मांगता हूँ मुझे क्षमा I कीजिए। ask you to forgive me, Holy Spirit. मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा मुझे क्षमा I कीजिए। invite you into my life. मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे जीवन में। Holy word to manifest within me.
प्रभु आपका कार्य मेरे जीवन में प्रस्तुत हो। May I glorify Jesus Christ. मैं यीशु मसीह को महिमा दूं। I want to be truly disciple of Jesus मैं Christ. सच में यीशु मसीह का चेला बनना चाहता I want to हूँ। worship my Jesus. मैं यीशु की आराधना करना I want चाहता to हूँ। love my Father. मेरे पिता से प्रेम करना I want चाहता to be हूँ। true to you as a child. मैं प्रभु आप संतान के समान जीना चाहता हूँ। Father in heaven, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से I pray each and everyone in this house. यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। Holy Spirit, speak to them dreams and visions. पवित्र आत्मा सपनों के द्वारा दर्शन के द्वारा उनसे Let बात them कीजिए। know the future you have for them. वो जान सके कि जो भविष्य आपने उनके रखा है। Holy Spirit, we ask you to forgive us. पवित्र आत्मा मैं मांगता हूँ हमें क्षमा We कीजिए। invite you to come to our lives. हमारे जीवन में आपका स्वागत है। Do your work in us. प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में May करें Jesus to be honored through us. और यीशु मसीह का आदर हमारे जीवन के द्वारा How हो। can we live without glorifying Jesus? हम कैसे जी सकते हैं प्रभु बिना आपको महिमा देते हुए। Jesus suffered publicly, यीशु मसीह जो लोगों के सामने वो कष्ट उठाया died for us publicly. और लोगों के सामने वो मरा Everything did for us publicly. और सब कुछ उसने लोगों के सामने हमारे लिए किया। Therefore, we want to glorify Jesus' name. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना चाहते हैं। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद Holy करे। Spirit, help us. पवित्र आत्मा मदद करे। Work in each one of हर us. एक के जीवन में कार्य करे। Let our life be a healing and blessing to the people. उनका जीवन प्रभु एक चंगाई का जीवन और आशीष का जीवन Thank बने। you, Lord, for listening to us. धन्यवाद प्रभु सुनने के We लिए। give glory and praise to you. प्रभु आपको महिमा स्तुति करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से।